So, good evening, friends. Let's start with the session. Let's see how many more members will join. In the meantime, am I audible? Can anyone confirm again? Kindly tell if my voice quality is correct. Okay, wonderful. Thank you, Mr. Bhagat. So, good evening, everyone. Uh, I have started this live session because many of the students have been messaging me about the queries regarding how to fill the form, what are the challenges, and about the age limit, about the height. I have made a video also and shared it on my YouTube. But I wanted your particular queries. If more of you could join and ask questions, I will try to answer in this live session. So first of all, let's start about a brief background about the examination. So Ministry of Home Affairs, it has advertised this examination after 2.5 years. So it's after 2.5 years that exam has been advertised. So it is actually a good opportunity for the youth of this country to serve in one of the most prestigious organizations. All right. So the first query that I have received is about the age limit. I will again clarify a little bit about that. If you are in the age bracket of 18 to 27 years, in that case you can fill the form, right? 18 to 27 year bracket, and the cutoff date for that will be 15th of December. So you have to ensure that you do not turn 27 before 15th of December, and you are not less than 18 years of age by 15th of December. So this is basically your age qualification criteria. Accordingly, there are relaxations. एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी हैं कुछ, जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं उनको उस हिसाब से रिलैक्सेशंस मिलेंगी, तो वो आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन में चेक करिए. अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वी कैन रियली टेक इट अप, यू कैन मेंशन हियर. एट द सेम टाइम अबाउट द हाइट आल्सो देयर वर सम इश्यूज. सो हाइट, आई थिंक इन द ब्यूरो देयर इज नो स्पेसिफिक हाइट requirements as such. So you don't need to bother about it. You just prepare about your examination, do your things well, and I'm sure that this is going to be good to go. Apart from that, about the medical fitness issues that you have raised, so the eyesight criteria is not as stringent as in the Air Force. If you have a 6x6, 6x9 or 6x12 eyesight and even spectacles you are wearing, it should be okay for you. You can really go ahead. And basically, rather than thinking about trivial things, that what is going to happen, when the exam is going to happen, many students have been asking that when the exam is going to happen. So friends, you shouldn't really think too much. No, advertisement has come, so you should start preparing. You should really start preparing in full gusto. All right. And most likely, for your information, 15th Feb, consider 15th Feb as the date of examination. The exact date only the Ministry of Home Affairs can say. So you can really do, what you can do is, you can try to really prepare accordingly. Mid-February is going to be the date for your examination in most probability. So don't keep your preparation linger on too much because of the doubts that you have. There should be no doubts in your mind, because this opportunity may not come in the next year. The advertisement may come after another 2 to 3 years. You never know. So this is a golden chance given by you, given by the ministry, and I think you should grab it. Apart from that, see, some students have been asking, sir, how do we prepare for this examination? What are the books that we should read, and what are the challenges that we will face while training? So I will try to address those queries. This will be a half an hour session, so I'll try to club a few things here. So as far as the first, I'll just briefly give you about the profile of the job, about the training procedures that are happening there. So basically, see, this is an intelligence organization. Intelligence Bureau will allow you to serve in such terrains and topographies that will expose you to a lot of challenges. If you have ever wanted to, does IB select candidates openly only? Chintan, Mr. Chintanov, yeah, IB selects candidate through this examination only. Earlier in 1960s and 70s, there used to be this thing that they used to hire from certain
undercover agents. They used to hire undercover agents in 60s and 70s in a different procedure. So currently if you want to join the organization, आपके पास 2-3 तरीके हैं. पहला तो आप ये वाला एग्ज़ाम जो अभी हो रहा है इसका फॉर्म भरिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है. यू फिल दिस फॉर्म एंड यू कैन रियली ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से. दूसरा, यहाँ से जूनियर पोस्ट में, दिस इज़ फॉर द ACIO पोस्ट, राइट. इससे अलावा आप JIO और SA के एग्जाम्स होते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट. आप उस पोजीशन में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी एग्ज़ाम निकलते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस DCIO के भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, वो भी आप भर सकते हैं. And sir, what are the medical standards for this? Is it stringent like armed forces? Okay, that is also a good question about the medical standards. Chintan, I have talked about the age limit, but I will again talk about that. Medical standards and age limit. So Chintan, I think your name, what is your name? Chintanov. Okay, Mr. Chintanov, age limit is 18 to 27 years. 18 से 27 साल के बीच में आप ये एग्जाम दे सकते हैं और इसका कट ऑफ डेट होगा लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म. 15 दिसंबर इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म और 15 दिसंबर तक अगर आपकी एज 27 साल से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं. अगर 15 दिसंबर से, योर नेम इज अनूप. ओके मिस्टर, ओके अनूप, इट्स नाइस दैट यू टोल्ड योर नेम. सो अनूप, अगर आपकी एज 15 दिसंबर से पहले 27 साल नहीं हुई है तो आप ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं. और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जहां तक हम बात करें, these medical standards are not very strict. They are not as strict like the armed forces. For example, armed forces में आपका फ्लैट फुट का इशू होता है तो वो फ्लैट फुट का इशू आपको यहाँ नहीं होगा. आई साइट के लिए भी इतना हार्श रिक्वायरमेंट्स नहीं है. कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, सर आई हैव दैट ACL सर्जरी हुआ है मेरा, सर कैन आई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए, इसमें सर्जरी अगर आपका हुआ है, सर्जरी के केस में भी अगर सर्जरी आपका हील हो गया और वो माइनर सर्जरी है और आपको ऑपरेशनल टास्क में वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होगा. सर इंटरव्यू ओनली इंग्लिश में होता है क्या? ओके मिस्टर विमल, मोस्टली द इंटरव्यू इज इन इंग्लिश ओनली. इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, पर वो एनकरेज करते हैं. अगर आप देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, भाषा सिर्फ एक हमारा बोलने का एक जरिया है, हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा. लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगा, आप इंग्लिश में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए. इवन आई एम प्लानिंग कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा मैं गाइडेंस दूँ इस बारे में, इंटरव्यू के लिए, ऐसे पेपर के लिए. तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं अपडेट्स देता रहूँगा. अगर आपको पर्सनलाइज भी मेरे से अटेंशन चाहिए तो मैंने लिंक मेंशन होगा इस इंस्टाग्राम चैनल पे ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन होगा. तो आप वहाँ जाके मेरे को 1-on-1 मेंटरशिप अगर चाहिए, आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम जो यहाँ नहीं शेयर कर सकते, आप मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए. मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम्स का हल करने की कोशिश करूँगा. इसके अलावा भी कोई और डाउट्स हैं, यू कैन आस्क हियर. तो वही मैं बात कर रहा था कि जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेज अभी होने वाला है मिड फेब में, और मोस्ट लाइकली 1-1.5 महीने के बाद आपका स्टेज 2 भी हो जाएगा. स्टेज 1 में आपके 5 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सेक्शन आपका है इंग्लिश में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए. तो मुझे लगता है इंग्लिश का अगर आप अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा आपकी वो स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी. और इंग्लिश के लिए आप हिंदू पढ़ें, कोई एडिटोरियल्स पढ़ें, कोई न्यूज़पेपर है हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से अगर आप कोई भी पढ़ते हैं तो आप वो ज्वाइन करें, वो बुक्स पढ़ें, और ताकि आपका थोड़ा सा आप वहाँ से इंप्रूव. बेस्ट बुक्स, देखिए मिस्टर भागत, देयर आर नो बेस्ट बुक्स इन फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर. सो बट जो भी बुक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे वही बेस्ट हो जाती है. ठीक है, तो बुक कोई भी बेस्ट नहीं होती. आपको हर सेक्शन के लिए आपको कवरेज करनी है, कहीं से भी हो जाए. अगर आपको पर्टिकुलरली अगर मेरे से पूछ रहे हैं, अगर सेक्शन वाइज उसका फिर बुक्स का एक अलग अलग पैटर्न रहेगा. जैसे करंट अफेयर्स का, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई ओन कोर्स. आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स कोर्स एंड मे बी GS ऑल्सो आई विल बी स्टार्टिंग. सो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप DM कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. बेस्ट बुक्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना पड़ेगा,
आपका बैकग्राउंड क्या है मिस्टर भगत? इज इट, डू यू हैव मैथमेटिक्स बैकग्राउंड? अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको मुझे लगता नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसमें, लेकिन आपको करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके अलावा देखिए, आपको इंग्लिश आपको एक एज दे सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है, नहीं भी स्ट्रांग है, जिनका थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिससे उनका थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाएं। मेरा एक एडवाइस होगा कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ये आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश को मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। इस 60 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने। ओके, यू हैव आर्ट्स बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई टू थोड़ा सा आप मैथ्स की कोशिश कर सकते हैं कि आप मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस करें। आई एम लिटिल पुअर इन मैथ, इज इट अ बिग डिसएडवांटेज? नो, इट इज नॉट अ बिग डिसएडवांटेज मिस्टर विमल, नथिंग इज अ डिसएडवांटेज इन दिस लाइफ। सर सीडीएस की प्रिपरेशन इनफ रहेगी क्या इसके लिए? या मिस्टर अनूप, सीडीएस की प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स और जीएस के लिए थोड़ा सा शायद स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई करनी पड़े। जहां तक मैथ्स का सवाल है, आपने पूछा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स इसमें इतना टफ नहीं आएगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। देखो, जंग लड़ने से सोल्जर, आप कैसे सोल्जर हो? जंग लड़ने से पहले हथियार डाल दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फाइट, ठीक है? आपको पहले सिलेबस देखना है, आप प्रैक्टिस करें, आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उसको मजबूत करें, लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसानी से हो जाता है, इंग्लिश आप कर सकते हैं, फिर जीएस और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आई थिंक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करूं अगर मैं, तो करंट अफेयर्स आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स इसके लिए करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम जैसे अभी नोटिफिकेशन आई है, तो 2023 जनवरी से नेक्स्ट जनवरी तक, जनवरी में, फरवरी में पेपर होगा, तो आपको जनवरी तक का करंट अफेयर्स 1 साल 13 महीने का करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं खुद भी कुछ स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे या डीएम करके पूछ लीजिए। एनीवेज, तो करंट अफेयर्स में आपको एक पर्टिकुलर सोर्स पढ़ना है। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर सोर्स पकड़ लीजिए करंट अफेयर्स का, तो उस सोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, तो उससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो रहा ना करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आपको कुछ ट्रिवियल डेटा भी याद करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नीड टू स्टडी अबाउट डिफरेंट अवार्ड्स, डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज दैट आर कमिंग अप, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जो न्यूज में रही। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता होना चाहिए एज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। अब एक चीज ध्यान रखें, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, तो आपको इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में पता रखना है। यू नीड टू नो। हेलो, जय हिंद सतीश, हाउ आर यू? सो बेसिकली, सिंस इट इज एन इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटेलिजेंस के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी है, वो कैसे हुई उत्पत्ति उसकी, कैसे वो नक्सलवाड़ी एरिया में चारू मजुमदार ने कैसे स्टार्ट किया है गांव से, वो बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा, वो इतने डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया है, डंडा कारना डिस्ट्रिक्ट में, फिर अबूजमात में, फिर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, नागा इंसर्जेंसी के इश्यूज क्या हैं, एनडीएफबी जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, बोडोस की प्रॉब्लम क्या है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो लोग। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, ठीक है? तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, उसके क्या इश्यूज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखें, चाइना का इतना लंबा बॉर्डर है, एक तो उधर आप देखिए लद्दाख की तरफ है, दूसरा आपका ये जो सिक्किम के साथ थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, फिर ऊपर अरुणाचल से लेके वो पूरा आगे तक म्यांमार तक पूरा आपका चाइना का बॉर्डर लगता है। तो वहां पे चाइना हैज बीन ट्राइंग टू इंट्रूड मेनी अ टाइम्स। इवन यू हैव सीन इन दौलत बेग ओल्डी इन लद्दाख, देन यू सी गालवन स्प्रिंग्स में एक इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले हुआ वहां पे डोकलाम स्प्रिंग्स, डोकलाम है ना, डोकलाम में भूटान, इंडिया और चाइना की ट्राई जंक्शन पे। अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है? रिसेंटली यू हैव सीन दैट देयर हैज बीन अनदर इंट्रूजन इन द यांगजे रिज। यांगजे रिज कहाँ है? एनीवन कैन टेल मी इन द कमेंट्स, वेयर इज द यांगजे रिज? Those who have been preparing for the CDS, I would ask you, Mr. Anup, Yangtze Ridge कहाँ पे है? If you can tell me. Anyone can tell me Yangtze Ridge? Okay, anyways, so China ने recently इंट्रूड किया था Yangtze Ridge जो तवांग सेक्टर में है, ठीक है? तवांग का अरुणाचल प्रदेश में, इन द हायर, आई वाज इन फैक्ट पोस्टेड देयर।
I was posted in the northeast sector for about 4 to 5 years. I've served there, तो I have closely seen those quarters. So the thing is, चाइना वहाँ पे इंट्रूड करता रहता है. तो अगर आप थोड़ा सा लाइफ में थ्रिल चाहते हैं, थोड़ा सा, यस वंडरफुल, चाइना में नहीं है वो, चाइना बॉर्डर पे है, ऑन दी तवांग एक्सिस पे है वो. तो अगर आप थोड़ा सा देश की सेवा करना चाहते हैं, थोड़ा आपको थ्रिल चाहिए लाइफ में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी. आपको मेहनत करनी चाहिए. तो यही मैं क्या बता रहा था आपको कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, आपको उनको अच्छे से, एक सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन इश्यूज की. फॉर एग्जाम्पल, आप जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के बारे में अगर बात करें, 370 के पहले क्या इशू था, 370 के बाद क्या चेंज हो गया. अब जैसे आपको पता होगा, अभी इट इज इन अरुणाचल, यस अनूप, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, यस, मैकमोहन लाइन, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या एब्सोल्युटली करेक्ट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सर IB में अभी है कि नहीं? Anup, I have Bimal Kumar, Bimal. So if I had been in IB, I would not have been sitting here in front of you because I would have gotten many memos by now. So the thing is, an intelligence officer cannot reveal his identity as far as he's in service. After having served for about half a decade, I quit from the Intelligence Bureau and then I joined as an enforcement officer in the Ministry of Labour, Government of India. So about that. So आपको ये थोड़ी सी इंटरनल सिक्योरिटी की नॉलेज ले लो अच्छे से. अब जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी. ऑलराइट, वन सेक, या सो मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी अटैक्स होते हैं. अब आपको पता है इंडिया के जो इंडियन ओशन में आपको वहाँ मलक्का स्ट्रेट मिलेगा, जावा सुमात्रा के आइलैंड्स के बीच में, ठीक है, जहाँ से 5 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड एनुअली होता है. तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपको सिर्फ किताबों में से फैक्ट्स नहीं रटने हैं, फैक्ट रटने नहीं, आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वर्क कैसा होता है IB में. मिस्टर वट एवर योर नेम इज 092. सो IB में द वर्क इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूमेन. अगर आप थोड़ा सा एक एंटरप्राइजिंग लाइफ चाहते हैं, आप चैलेंजेस आपको पसंद है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि no day will be boring for you. You will definitely get an opportunity to express your love for your motherland. आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने उन सपनों को पूरे करने की. जो लोग एक्चुअली, देखिए, बहुत सारी जॉब्स होती हैं करने के लिए, लेकिन मैंने IB में भी जॉब किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी. आई हैव बीन वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड इन लंदन, 2 साल मैंने वहाँ काम किया है, और अभी इन्फोर्समेंट में भी काम किया है. सो आई कैन टेल यू द वर्क कल्चर एंड द अपॉर्चुनिटीज इन द ब्यूरो आर डिफरेंट. वेटेज रिटर्न या इंटरव्यू किसका ज़्यादा रहता है? विमल, आई थिंक यू शुड सी द नोटिफिकेशन में. देखिए, आपके 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट सेक्शन स्टेज इज Tier 1, फर्स्ट स्टेज, इट इज़ 100 मार्क्स पेपर. स्टेज 2 इज 50 मार्क्स पेपर. गुड इवनिंग मिस्टर पप्पू जूनियर, गुड इवनिंग. सो इसमें स्टेज 1 आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे. फर्स्ट स्टेज आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सेकंड स्टेज लिखने को मिलेगा. और सेकंड स्टेज 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक ऐसे रहेगा आपका, एक आपका वो रहेगा प्रीसी राइटिंग रहेगा. आपका फर्स्ट स्टेज का मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा, और सेकंड स्टेज में आपके जितने मार्क्स है दोनों को ऐड किया जाएगा. जब ये दोनों मार्क्स ऐड हो जाएंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा. तो इन तीनों के मिला के फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी. तो ज़्यादा वेटेज ऑब्वियसली रिटन एग्जाम की है, लेकिन इंटरव्यू में एक्चुअली देखिए, IB का इंटरव्यू, IB के लिए ना एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए होगी आपको. IB का मोटो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, IB का मोटो है जागृत अहर्निशम, विच मीन्स ऑलवेज अलर्ट. A soldier is always alert, and you have to be always alert, not just while after becoming an officer. You should be alert even before joining the service. देखिए, मैं एक चीज ऐसे में किसी लैंग्वेज में लिखना है. आई थिंक हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, शायद हिंदी में लिख सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इंग्लिश में तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हिंदी में भी शायद आप लिख लेंगे. और जैसे मैं कह रहा था, देखिए, आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, आपको ऑफिसर बनना है, अगर आपको ऑफिसर एग्जाम क्लियर करके नहीं बनोगे आप. ऑलराइट, ये चीज़ आप ध्यान में रखें. मेरा IB SA का एग्ज़ाम है,
देखिए ऐसे का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली ACIO से लोकल लैंग्वेज नो ओनली हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम. I think mostly it will be Hindi or English, no other language. So preferably I would suggest थोड़ा सा आप इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा. तो जहाँ तक मैं कह रहा था, देखिए एग्जाम क्लियर करके आप अफसर नहीं बनोगे. अफसर आप पहले बनोगे फिर एग्जाम क्लियर होगा आपका. ठीक है. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यू हैव टू इम्बाइब इन योर सेल्फ. यू हैव टू चर्न योर पर्सनैलिटी. यू हैव टू, कहते हैं ना, सूरज आप तभी बनोगे जब सूरज जैसा जलोगे. तो सूरज जैसा जलने के लिए आपको अपने आप को हार्डवर्क करना पड़ेगा. ऑलराइट. तो जहां हम एक सिलेबस की भी बात कर रहे थे, बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वी आर ट्राइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो देखिए, करंट अफेयर्स का हमने बात कर लिया. इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. दूसरा, हमने इंग्लिश की भी बात कर ली, करंट अफेयर्स की भी बात कर ली. आई थिंक वी विल कंटिन्यू. या ओके. आफ्टर दैट क्वांट. अब क्वांट और रीजनिंग का अगर जहां तक सवाल है, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग अगर आपका मैथ डिसेंट भी है, आप प्रैक्टिस करके 2 महीने का टाइम है आपके पास. देखो दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है. आप इन 2 महीनों में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें तो आपका ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा. और करंट अफेयर्स अच्छे से करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए अपडेट होता रहता है, तो वो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू डू दैट. इसके बाद जो अगर मेन सो बेसिकली इट विल बी लाइक एन SSB, इजंट इट? I would say not exactly like SSB, because SSB is a 5-day event, right? First there is a screening and then there are the psychometric analysis. Although here you will be subjected to psychometric analysis, but not in the same manner as in the SSB. In fact, यहाँ पे जो आपका interview लेंगे, they will be retired IPS officers or maybe serving IPS officers as well, and other psychologists will also be sitting in the board. So board is around 5 members, I think, are sitting in the board. In both, because since I qualified the exam twice, I will share a little bit about my interview experience, which I will put a detailed video in my channel as well. So in one question, if I can recall, interview center is mostly in Delhi. It is mostly in Delhi. For example, you filled, and it is also in regional centers as well. Delhi or in regional centers. I think in big cities, for example, Chandigarh will be one center, and then other areas. Mostly it is in Delhi because maximum people give the exam from that region, and then zonal wise they will select certain cities where they will hold. So but the interview I was saying, they asked me that since I am from Jammu and Kashmir, so they asked me, so Mr. Navjot, tell us how will you resolve the problem in Kashmir? The Kashmir problem has been a great trouble for us over a long time. So what are you going to do to solve this problem? So my answer was really straightforward. That's why the problem of I don't feel I am in the best capacity to answer this question because of my limited knowledge, but I will try to attempt it anyhow. So what I said was, sir, a problem of this critical magnitude. I think Mr. Bimal, I think the name is mentioned in the. You can go in my bio. You can check there. It is by the same name, Navjot Singh _IB. Yeah. So basically what I was trying to say, so I tried to answer that, sir, the problem of the magnitude of Kashmir cannot be solved in a day or two. Yeah, that's it. Problem cannot be solved in a day or two. We have to take all stakeholders on board. हम सभी stakeholders को on board लेके आएंगे and take care of the interests of the local population as well as overall strategic and geopolitical interests of our country. Then only we'll be able to arrive at a really long-term solution to a problem as critical and as intrigued, and the problem that has a baggage of history. So this is how you try to build your answer. In another interview, I was asked about Kartarpur issue because at that time, in fact, I will tell you, I hadn't read about Kartarpur at that time. By chance, that was not in the news because it came into current affairs much later. Excuse me. Yeah. तो करतारपुर के बारे में मेरे से पूछा गया. I tried to reason it out. They asked me what will be the challenge faced by India in opening the Kartarpur corridor and whether Pakistan will allow. Despite not knowing it, what I tried to do is I tried to reason out
because they appreciate your critical reasoning. I got one of the highest marks in the interview, which although they don't release the marks, but one of my seniors, they told that you did really well there. In fact, in one of the state PSC interviews, I scored the second highest marks. So see, the thing is, interview is a reflection of your personality. इंटरव्यू आपका एक दिन की तैयारी से नहीं होता है, 2 दिन की तैयारी से नहीं होता है. आपने जब से होश संभाला है, जब से आप from the moment you have taken birth and the moment you have grown as an adult, moment you have studied a lot of things, it is the accumulation of your personality over so many years. What you have done, what you have studied, what is your friend circle, what is your hobby, and what are your social interests. आपका दुनिया की प्रॉब्लम्स को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, आप कितने ऑनेस्ट है अपने आप को लेके, और देश के लिए आप कितने जेन्युइनली आप फील करते हैं. तो वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके, देखिए इंटरव्यू में आप ब्लफ नहीं कर पाएंगे. यू कैन नॉट ब्लफ. योर एक्चुअल पर्सनैलिटी विल कम आउट. सो यू शुड ट्राई टू shape your personality gradually. Try to develop a hobby. Try to develop a habit of reading newspapers, listening to current affairs, and having intellectual discussions with your friends. Because see, देश की सेवा सिर्फ हमें तलवार उठा के या बंदूक उठा के नहीं करनी होती है. पेन की ताकत भी बहुत मजबूत होती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको पेन की ताकत इस्तेमाल करने का भी बहुत अवसर मिलेगा. आप जानते नहीं कि आईबी अपने पेन से ऐसे ऐसे काम कर देता है जो मिलिट्री वाले अपनी बंदूक से भी नहीं कर पाएंगे. इफ व्हेन यू आर पोस्टेड इन द आईबी यू विल रियलाइज दैट आपके साइन के बिना एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेंज नहीं होती है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर जाके में पता चलेंगी. आप तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जाने का अवसर भी मिलेगा. कोई और स्पेसिफिक डाउट है आपके तो हम ले लेंगे. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन आस्क. How many of you are writing the exam for the first time? Are 45 days sufficient for beginners? Bimal, let me tell you one thing. Let me ask you one thing. If it is not sufficient for beginners, will you quit the exam? Will you quit preparing for the examination? अगर 45 दिन आपने मेरे से सवाल पूछा, 45 दिन सफिशिएंट है क्या बिगिनर्स के लिए? अगर नहीं है तो क्या आप एग्जाम नहीं देंगे? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, आई कैंट गेट योर क्वेश्चन. सतीश कुमार, नहीं छोड़ेंगे ना? ऑब्वियसली यू विल नॉट क्विट. ऑब्वियसली यू विल नॉट क्विट. सो दैट यू आंसर्ड योरसेल्फ. देखिए, आप सिचुएशंस को लाइफ से, एग्जाम को भी लाइफ से रिलेट करके देखो. अगर जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, जंग छिड़ी हुई है बॉर्डर पे, आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा. आप बोलोगे सर मेरी तैयारी नहीं है, मेरे को भी तैयारी करने का मौका दो. पाकिस्तान वालों को बोलो भाई रुक जाओ थोड़ा सा, हम पहले तैयारी कर लेते हैं फिर आप जंग करना. ऐसे नहीं होता ब्रदर. लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब आए, कहते हैं ना, या तो लोहा इतना गर्म हो कि आप हथौड़ा मारो, या फिर इतनी जोर से हथौड़ा मारो कि लोहा ही गर्म हो जाए. तो अपना लोहे को इतनी जोर से हथौड़ा मारो कि वो एकदम, कहते हैं लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. समझ रहे हो? जितनी धार चलती है ना हीरे पे उतना ही चमकता है वो. तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं है. आपका ये सवाल पूछना ही नहीं है आपने कि सर तैयारी हो सकती है, बिगिनर हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो. डज नॉट मैटर ब्रो, डज नॉट मैटर. यू आर अ प्राउड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. दिस इज नॉट द क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट. यू शुड रियली, आप अगले 2 महीने जान लगा के अपने तन मन धन फूक दो इसमें. एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली. सर कैन यू सजेस्ट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर completing the entire syllabus within the short span of time? Definitely I will try to do. If you want, every plan will be different for everyone. If you want a personalized plan, you can go to this session. You can book a session. You can book a session where we will be one-on-one. हम बात करेंगे जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, हम उसको एड्रेस करेंगे और एग्जाम की नीड्स के हिसाब से उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम वो करेंगे.
Sir, does the IB work in close coordination with the army? Absolutely, brother. Mr. Anoop, I can tell you my working experience in the bureau in the Northeast was one of the most challenging and most beautiful. I am physically weak. Knock knee, can I? Absolutely, no problem for knock knees here. Is it physically fit person? No, no problem for knock knees. No problem for knock knees here. हाँ मिस्टर पापू जी जो एंड ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कैसे होती है, ट्रेनिंग भी बताएंगे आपको। आपके सवाल क्या थे, एक मिनट। तो स्टडी प्लान के लिए मैंने जैसे बोला ना, 1-on-1 सेशन ले ले, उसमें हम आमने सामने बात करेंगे, आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स भी लेंगे, क्योंकि इधर हम जनरलाइज थोड़ा सा ले रहे हैं। अगर आपके जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं हम उनको डील करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप टेंशन मत लीजिए। आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड वर्किंग। सी, I, as an intelligence officer in the army, got an opportunity to work with the Brigadier General Staff intelligence of the Corps headquarters. Even a colonel sometimes does not have access to a Corps headquarters का BGS जो होता है, Brigadier General Staff, Major General of the Corps. So I had such access. I had access to all the, not just the army. I had the access to the Air Commodore. I had the access to Deputy Magistrate, to the Superintendent of Police. In fact, every month there used to be an airport security meet, and I used to represent the Intelligence Bureau. And in fact, I would tell you an incident. There had to be a change in the deployment of the CISF, and without my signature, they couldn't do it. So the thing is, IB is an organization जहाँ पे आपको सिर्फ आर्मी नहीं, एयरफोर्स, CISF, CRPF, BSF, police, administration, irrigation department, waterways, you name it and it is there. Every department, for example, from, training I cannot tell you here, I can personally if you want, but ये 2-3 जगह पे होती है. I can share the tenure also. 2.5 महीने की पहले आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, 2.5 से 3 महीने की. वहाँ पे आपको फिजिकली, इनफैक्ट आई वॉज अवॉर्डेड the indoor best trainee in the physical training part and also in the next phase in the intelligence course also. तो आपकी 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग होगी. मध्य प्रदेश में एक जगह है, आई विल नॉट नेम द प्लेस हेयर, एंड उसके बाद आपकी दिल्ली में होती है, वो भी अनदर 2.5 महीने की ट्रेनिंग है. दैट इज इंटेलिजेंस कोर्स. वहाँ पे आपके साथ कुछ IPS ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग करेंगे. ओके, तो वो आप गन ट्रेनिंग. Okay, you are very intrigued about. So yes, I did shoot AK-47 also. So don't go too much into that, right? 2.5 months में absolutely you get to shoot. आपको Glock मिलेगी, पिस्टल 9mm, आपको SLR से मिलेगा, आपको 303 मिलेगा, आपको AK-47 में मिलेगा. प्रॉपर रेंज में आपकी शूटिंग होगी और आपका कंपटीशन भी होगा, शूटिंग का कंपटीशन भी होगा वहाँ पे. डोंट वरी. MP एंड राजस्थान में होता है. हाँ, बिल्कुल. Don't name the place here. I would advise you not to name. Behave like an officer of the bureau. Secrecy is the essence. Secrecy is the essence of the bureau. So try to understand that. I will not try to name the city myself. If you know it, that's okay. If you know it, that is perfectly fine. Mr. Bimal, if you know it, it is okay. Don't worry. That's perfectly fine. I am not going to name the place. Fine. सो दिस इज़ अबाउट इट. थोड़ा सा ये स्किल सेट आपको सीखना पड़ेगा, और कोई और क्वेरीज है तो आप बताइए, तो अदरवाइज विल क्लोज दिस सेशन. आई एम NC सर्टिफिकेट होल्डर बेस्ट. ओ वंडरफुल मिस्टर सतीश, दैट देन इट्स गोना बी, यू विल गोना बी द बेस्ट शूटर इन IB ट्रेनिंग. वेलकम टू द ब्यूरो. बट शूटिंग इज वन ऑफ द पार्ट. देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. यू विल हैव टू रीड सर्टन लॉज, सर्टन IPC पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको कुछ क्रिमिनल लॉज पढ़ना पड़ेंगे, आपको पुलिस की चार्जशीट कैसे फाइल होती है वो पढ़ना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, आप वेट करें उसका. तो बाकी देखिए, अभी हम इस डिस्कशन में आई थिंक हाउ मच, या वी विल जस्ट क्लोज द डिस्कशन इन अनदर 5 minutes बिकॉज वी हैव अनदर सेशन आफ्टर दैट. तो अगर आपको इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, आप बुक कर सकते हैं एक सेशन जहां हम 1-on-1 बात करेंगे. डाइवर्सिटी इन ABI पोस्ट, एब्सोल्युटली ब्रदर, देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. यू गेट टू वर्क नॉट जस्ट इन सिक्योरिटी बट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, फ्रॉम
सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट? मोस्ट प्रोबेबली फरवरी, मिड फरवरी में आपका एग्जाम होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। देखिए एग्जैक्ट तो आपको MHA ही बताएगा, बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज आई थिंक मिडल ऑफ फरवरी द एग्जाम विल बी देयर। मिड फरवरी में आप देखिए, एग्जाम की डेट का वेट मत कीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। विल यू गाइड इन डिस्क्रिप्टिव एवरीथिंग? आई विल बी देयर ब्रदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई विल गाइड इन डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू एज वेल। आपको डिटेल चाहिए तो आप देखिए DM कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक इंडिविजुअल सेशन आप करें, मैं आपको इंडिविजुअली आपकी, देखिए हर बंदे की स्किल सेट अलग होती है। जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा गाइडेंस नहीं चाहिए डिस्क्रिप्टिव में। किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, सर अभी मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हुई है, आई मीन प्री एक्चुअली अनूप आप नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम, इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो पहले आप ग्रेजुएट हो जाएं, उसके बाद ही आप दे पाएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो तभी दे पाएंगे आप एग्ज़ाम, ठीक है। तो वही है, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है तो उसको इंग्लिश में गाइडेंस नहीं चाहिए। तो आप अपना इंडिविजुअल, आपका मैं जो स्किल सेट है उसके हिसाब से आपको एक फाइन ट्यून स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको, देखिए आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, उनको खुद पता नहीं है IB के एग्जाम को और आपको गाइड कर रहे हो। आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ दे आर मोर लाइक कमर्शियल मसालाज गोइंग अराउंड। तो सिंस आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम ट्वाइस, तो आई थिंक आई कैन, मैं आपको एक दो बात तो सही बता ही सकता हूँ। तो आपको फेथ भी रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, अगर आप थोड़ी सिंसेरिटी से रहेंगे तो मैं आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। सी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फोर्सेस, यू हैव टू रिस्पेक्ट द वेटरन्स ऑफ द फोर्सेस, बी इट आर्मी, एयरफोर्स, ब्यूरो, एवरीवेयर, एवरीवन। उनकी डिग्निटी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और मैं यहाँ पे देखिए नॉइसेंस भी टॉलरेट, जनरली आई डोंट टॉलरेट नॉइसेंस, आई एक्सपेक्ट सिंसेरिटी, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा सिंसेयर होकर काम करेंगे। अनूप, नो प्रॉब्लम, द स्काई इज द लिमिट, नोटिफिकेशन में भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर, सो यू कीप प्रिपेयरिंग। और भी एग्जामिनेशंस हैं, अगर UPSC वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आई गाइड स्टूडेंट्स अबाउट UPSC। आई हैव रिटन मल्टीपल मेन्स ऑफ UPSC ऑल्सो, तो डोंट वरी। देखिए लाइफ में ना, मेरा जो एक, मैं क्या मानता हूँ, कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं होती ना हार कोशिश करने वालों की। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। क्योंकि मेरे दोस्त, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना हमें। देखिए देश, अगर आप अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट से उठ के देश के बारे में सोचेंगे, इफ़ यू थिंक अबाउट द कंट्री, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा, आप हमेशा इंस्पायर रहेंगे, ठीक है। अगर देखिए देश सेवा का जज्बा अगर अंदर लेके चलेंगे ना, कहते हैं ना, वो जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसने रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश का जो प्रेम है ना, देश प्रेम से आप अगर काम करेंगे, अगर आपके दिल में ये जज्बा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो आपको दिन क्या रात क्या समझ ही नहीं आएगी। अब देखिए, मैं अभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, मैं अपने काम से टाइम निकाल के आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा मोटिव क्या है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाऊँ, जो मेरे को गलतियां हुई वो आप लोग ना करें। और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ है कि कई बच्चे इनसिंसियर होते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करें कि थोड़ा सा उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, चीज़ों के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा तरीके से रहें। तो अगर देखिए, कहते हैं ना, कुछ लेने के लिए पात्र भी खुला रखना पड़ता है, तो पात्र, आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, डोंट वरी सर, आई विल मेक दिस वंडरफुल 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 सतीश, इट्स रियली प्राउड। सी, आई बिलीव डिफेंस सर्विसेज से ज़्यादा बड़ी देश की सेवा किसी और महकमे में नहीं हो सकती। वैसे देश सेवा तो वो स्वीपर भी कर रहा है जो टाइमली झाड़ू मार रहा है, वो दूध वाला भी कर रहा है। ऑनरेबल EPF एग्जाम गाइडेंस टू सर, एब्सोल्युटली। EPFO का भी अगर आपको गाइडेंस है, मैं EPFO भी क्वालिफाई किया मैंने, तो उसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आई विल गिव, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ अब हम IB की बात कर रहे हैं, लेकिन EPFO के लिए भी आप चाहते हैं तो देखिए, आप
आप अपना डिटेल्स मेंशन करके एक सेशन बुक कीजिए। मैं आपसे वहाँ डिटेल में थोड़ा एक दिन एडवांस में ज़रूर बुक कीजिए, बिकॉज थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, तो कोशिश कीजिए 24 घंटे पहले आप बुक करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा मेरे को भी प्लान करने में, बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो। इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन अ कोर्स ऑल्सो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोर्स की स्टार्ट करूँ करंट अफेयर्स और जीएस की। उसमें नॉमिनल सी फीस रखी है मैंने, जस्ट कि जो मेरी टीम है उनकी थोड़ी सी मतलब उनको थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स और उनको कुछ पे करना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ा सा नॉमिनल फी रखा है मैंने, बिकॉज मैं फालतू बच्चों को एंटरटेन नहीं करूंगा इसमें। वही जो सिंसियर बच्चे होंगे उनको मैं खुद ट्रेन करूंगा। ईपीएफओ की एज आई थिंक आपकी 30 होती है, एक बार मैं चेक 30 आई थिंक इट्स 30। ईपीएफओ की एज 30 होती है, 30 साल। क्लास कब शुरू होंगे? क्लास मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 3-4 दिसंबर को शुरू करने वाले हम। 3 से 4 दिसंबर को पहले हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें दो मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है सारी डिटेल्स। 2 तरह की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। एसीआईओ की स्टार्ट कर रहे हैं 3-4 दिसंबर के अराउंड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पर्सनली आपको कुछ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और लाइव क्लासेस भी ले लूँगा। तो बाकी आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। बाकी देखिए, थोड़ा सा अगर हम मेहनत करेंगे ना जीवन में ना, कोई कहते हैं ना, शूट फॉर द स्टार्स, नेशन एंड यूथ नीड पर्सन कम लीडर। थैंक यू सो मच सक्षम, इट्स इंडीड एन ऑनर। in fact we all you are all proud citizens of this country। आप इस देश के भावी भविष्य हैं। आपको फोन कर सकता हूँ क्या? 092 आप एक काम करिए ना, आप सेशन बुक कर लीजिए वहाँ पे। फोन पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे को और कमिटमेंट्स रहेंगे। थोड़ा सा एडवांस में हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे, थोड़ा उस हिसाब से हम कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन टेकिंग, बट आई हैव सर्टन कंस्ट्रेंट्स। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझिए। थोड़ा एडवांस में हम एक अपॉइंटमेंट बुक करके आए तो थोड़ा सा मेरे को भी प्लान करने में, और जब अपॉइंटमेंट बुक करें अपनी कोई प्रॉब्लम है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो आप बता के रखें, ताकि बिफोर सेशन आई कैन रीड अबाउट व्हाट इज योर बैकग्राउंड। अपना बैकग्राउंड मेंशन करें। बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए आपका नेम, एज, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, और आप पर्टिकुलरली मेरे से क्या चाहते हो, आपको मेरे से किस चीज़ के बारे में स्पेशल एडवाइस चाहिए, ठीक है। तो आप वो चीज़ करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल वर्क ऑन दिस। तो हम पहले करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर्स के रिस्पांस के हिसाब से फिर जीएस का भी मैं सोच रहा हूँ कि जीएस, क्योंकि इसमें जीएस यूपीएससी लेवल का नहीं चाहिए, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ। इंटरनल सिक्योरिटी के भी एंगल, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूँगा, अगर तो हो पाया जितना मैं कर पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में सारा कुछ बता नहीं सकते, तो जितना हो सकेगा उतना मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। और मतलब ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कई लोग डिफेंस फोर्सेस में, अब माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा ब्रदर, अभी ही वाज सर्विंग एज अ मेजर अभिनंदन। अभी उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया जस्ट इसी साल, है ना। तो बेसिकली सी, अब मैंने जब शुरू किया था मुझे यूपीएससी की गाइडेंस नहीं थी। आई टोल्ड अ फ्यू थिंग्स टू हिम, जो मैंने गलतियां की उसने नहीं की, तो ही क्वालिफाइड यूपीएससी। तो देखिए, मतलब ऐसे होता है कि आप अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर चलेंगे ना, थोड़ा सा जो मैं बताऊंगा अगर वो करेंगे, तो एसएससी लेवल की जीएस, ओके सर जी, एसएससी से शायद थोड़ी सी हाई होगी या यूपीएससी से नीचे होगी, तो बीच में थोड़ी सी फैक्चुअल भी आती है इसमें, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। जैसे केशवानंद भारती केस के बारे में पूछ लिया था कि कौन सा केस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा मेरे को देश के भविष्य से जुड़ के। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। We will like to close very soon. And if anyone has queries, we will quickly take in next 2-3 minutes before we close, and maybe we'll try another session tomorrow. Any questions you have, you can ask in next 2-3 minutes, and then I will close. No problem, Saksham. It's an honor. It's a privilege to talk to you guys. If anyone has any questions, you can ask friends. आप कुछ सवाल हैं आपके, आप पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए और हम कंटिन्यू करेंगे, then I have another session. I will conclude in next 2-3 minutes.
मेरा थोड़ा थ्रोट खराब है, थोड़ा आई कैन नॉट स्पीक मच, थोड़ा सा आई हैव अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, अनफिल्टर्ड सोल, आई विल बी मोटिवेटिंग यू गाइज। तुषार, आई थिंक आई हैव टोल्ड, करंट अफेयर्स के लिए आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ कोर्स। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक कंपाइलेशन पकड़ ले, लेकिन चक्कर क्या है, उसमें पता रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी। प्रोसेस टू बुक अ सेशन, आप आई विल पुट आई थिंक देयर इज अ लिंक इन द स्टोरी ऑल्सो, योर मेंटर करके आई थिंक लिंक है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। आई विल पुट इट इन द स्टोरी आफ्टर द सेशन, आई विल पुट इट इन द सेशन, यू कैन सी देयर। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी डिटेल मेंशन करें। तो तुषार, आपका जो सवाल करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स आपको 1 साल का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल क्लोज द सेशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो जीएस का भी मैं बताऊंगा, आप अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ऑफ टाइम है, हम इस क्वेश्चन के बाद क्लोज करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जनवरी 2022 से लेके 23 से लेके इस साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको करना है, ठीक है। विल देयर बी मोर फैक्चुअल जीएस लाइक एफकैट? नो, एफकैट तो आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर, इट्स अ वेरी लड्डू पेपर जैसे इसको कहते हो। क्वेश्चंस विल बी लाइक सीडीएस, इट विल बी लाइक लिटिल बिट लाइक सीडीएस, more like CDS and more like CAPF as well. I think it will be higher than AFCAT in any day, closer to CDS, lesser than UPSC. And some factual questions, some conceptual question, it will be a mix of both. Yeah, AFCAT तो कुछ नहीं है, AFCAT तो बहुत लॉलीपॉप पेपर है, उसकी तो तैयारी मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए, वो बिना तैयारी के क्लियर हो जाएगा। तो about current affairs, you can refer to any current affairs source. If you want my help, तो I am starting a course of current affairs by 3rd or 4th of December. So if you are interested, we have kept a very nominal fees just because the team has to arrange for logistics and non-serious candidates na aaye, because actually people take it for granted and they are not very serious about it. So just kept a nominal fees for that, just to ensure, because I won't be taking many students. I will be taking a very select few students. Following your YouTube channel religiously, please keep. Yeah, definitely I'll be uploading videos. बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव इंडिविजुअल गाइडेंस एज वेल, जिनको थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा अच्छे से मुझे लगता है करने की ज़रूरत है, तो वो हम करेंगे। बाकी और कोई सवाल था? सक्षम, जीएस कोर्स, जीएस भी करेंगे यार, पेपर 2 का भी देखिए, पहले आप शुरू करते हैं ना, शुरू करेंगे फिर जीएस पेपर 2 भी करेंगे और वो भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से, पेपर 1 में भी हम करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद हम जीएस पे भी जाएंगे, क्योंकि जीएस 20 नंबर का आता है, करंट अफेयर्स 20 नंबर का आता है, तो वो 20 नंबर का करंट अफेयर्स हो गया आपका, तो फिर जीएस भी हम करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई थिंक आई हैव टू क्लोज द सेशन, आई हैव टू रश समवेयर। पेपर्स 2 सर बताओ, टेलीग्राम लिंक प्लीज, टेलीग्राम लिंक आई थिंक that also I will share. I think it is in, you check in the videos, video की description में you will get, video की description में you will get a telegram link. I will share in the stories in that case. I will share both the booking वाला link and telegram वाला link in the stories. Don't worry. I will share, don't worry. And paper 2 का भी बताएंगे, paper 2 का next session में मैं डिटेल में एक strategy video भी डाल दूंगा। चलो, I'll take your leave friends. Keep preparing, work hard, and whenever we talk about the Josh, if I ask you, how's the Josh? What's the answer? What's the answer, friends? It has to be, hi, sir. So at this note, I take your leave. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, everyone. Jai Hind. It was really nice talking to you. We'll catch up maybe tomorrow or day after एक और session रख लेंगे. Don't worry. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you. Bye.